Welcome everybody. This is our new class in our class 10th chapter light series. Till now we have covered around 8 classes and in our last class we discussed regarding uh, various terms related to mirrors, lenses. We also saw sign convention for lenses. We also saw various type of lenses. Then we discussed how basic images are formed. We also discussed difference between or comparison between mirror and lenses. We also discussed that how we can form a lens system, and all related to lenses we covered in our previous video. In this video, we are going to discuss image formation using uh, convex and concave lens, and we will start with convex lens and then we will follow to concave lens. We will try to cover both in this video, or at least one. For convex lens we will cover in this video, and for concave lens we will cover in next video. Before going further, I will ask you to share this video, like this video. If you have any doubt, comment them and subscribe to my channel. You can also watch our previous video. We have a specific playlist for physics of class 10. You can search on my channel class 10 physics. You will find complete playlist there, where I have uploaded around 7 to 8 lecture with this only on this chapter, and more will be coming soon. We will be also covering a question bank like series for this chapter, where we will discuss around 100 numerical plus theoretical question in combined, even more than that. So it will be helpful for you if you are studying in class 10, and it will be a good exercise for you to solve those questions. And as I will be solving them, so then you can also compare your solution with my solutions. So to get our latest update, I will urge you to like, share, and subscribe. More you share, more you subscribe, more we will get motivation to make such type of content. And now let's start today's topic, that is image formation in case of convex lens system. And as you can see on screen, this is basic structure or basic system which we are going to use today. Here this is a convex lens made of glass. नॉर्मली जितने भी आप लेंसेज लोगे सभी ग्लास के ही बने होते हैं 99%. And as I said that in our previous video, that this lens is made of two type of curves. One this curve, तो जो ये आपकी फ्रंट में मीन्स लेफ्ट साइड में जो कर्व होगी, इसका फोकस राइट साइड में आएगा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको 2f बोल दिया जाता है. तो हमने इसको f2 बोला हुआ है बिकॉज हमारे पास यहाँ पे दो फोकस होते हैं. एक लेफ्ट साइड की कर्व का फोकस राइट साइड में होता है, और जो राइट साइड की कर्व है इसका फोकस लेफ्ट साइड में होता है. तो इसको हमने f1 बोला है, और जो इसका डबल होगा उसको 2f1 बोला है. और जो 2f1 है ये c भी है, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है. तो ये हमारा बेसिक सेटअप है. इसी सेटअप के ऊपर हम सभी केसेस को डिस्कस करेंगे. हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और जो आपको ये बीच में ब्लैक लाइन शो हो रही है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है. सो जैसे हमने मिरर के लिए केसेस डिस्कस किए थे, वैसे हम इसके लिए भी केसेस डिस्कस करेंगे. और हमारे जो केसेस हैं वो ये सभी हैं. हमें जो डिस्कस करना है वो हमें ये केसेस करने हैं कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, 2f पे हो, बियॉन्ड 2f हो, 2f पे हो, f और 2f के बीच में हो, फोकस f पे हो, f और o के बीच में हो, और जो o है वो ऑप्टिकल सेंटर या जो हमारा पोल होता है वो ये होता है. यहाँ पे दिस इज आवर o. सो
लेट डिस्कस फर्स्ट केस। हम इनको नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज ए, बी, सी, डी, ई, एफ। हमारे पास टोटल 6 केसेस हैं, तो हम इन 6 केसेस को स्टडी करेंगे। तो हम ए स्टार्ट करते हैं अपना। ये हमारा लेंस सिस्टम हो गया। तो पहले केस में जो लाइट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती है, और जब भी लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती है मतलब कि लाइट रेज पैरेलल होती है। तो हम पैरेलल रेड लाइट रेज ड्रॉ करते हैं, और मैं आपको वो शो करता हूं। सपोज ये हमारी फर्स्ट लाइट रे है। जो इनकमिंग रे है हम उनको रेड कलर से शो कर रहे हैं। ऐसे ही 2 लाइट रेज हम नीचे लेते हैं। ये होगी हमारी इनकमिंग रेज। और हमने आपको बताया था मिरर के केस में भी कि जब भी हमारे पास कोई पैरेलल रे आएगी, जब मिरर से वो रिफ्लेक्ट होती थी, मिरर से रिफ्लेक्ट होती थी, यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इन केस ऑफ मिरर, मिरर के केस में रिफ्लेक्शन होता है, और लेंस के केस में रिफ्रैक्शन होता है। दोनों में स्मॉल सा डिफरेंस है, बट बोथ आर डिफरेंट फिनोमिना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बट इम्पैक्ट दोनों का सेम ही होता है, दैट जब पैरेलल लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी तो फोकस से पास होती थी, उसी साइड के फोकस में। लेफ्ट साइड से आ रही थी, लेफ्ट साइड से रिफ्लेक्ट होकर लेफ्ट साइड के फोकस पे चली जाती थी मिरर में। लेंस में क्या होता है? पैरेलल लाइट रे है, लेंस के अंदर जाती है तो रिफ्रैक्ट होगी और फोकस पे जाएगी राइट साइड के पे। मींस ऐसे होगा कि जो आपकी लाइट है, ये आपकी, सपोज कीजिए हम इसको ऑरेंज कलर से शो करते हैं रिफ्रैक्टेड लाइट को। तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो ऐसे फोकस से क्रॉस करती है, और ऐसे जो इमेज बनती है वो फोकस पॉइंट पे बनती है। कहाँ पे? F2 पे बनती है। और आप देखोगे ये बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस पे बन रही है। तो जो इमेज है वो साइज में बिल्कुल छोटी है, और साइज में तो छोटी है, बट यहाँ पे रियल लाइट जो इमेज बनी है वो इन रियलिटी जो लाइट रेज हैं उनके इंटरसेक्शन से बनी है। तो जब भी लाइट रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हैं तो रियल इमेज बनती है, और रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। जो हमारा फर्स्ट केस है, उस केस में जो हमारा फर्स्ट केस है, मीन्स जब लाइट इन्फानाइट से आ रही है, उस केस में जो हमारी इमेज बनेगी वो बनती है F2 पे, यानी कि सेकंड फोकस पे बनती है। साइज बहुत स्मॉल है, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस के प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बन रही है, जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बन रही है। एंड साइज स्मॉल है, और इन्वर्टेड है, उल्टी होती है इमेज। सो रियल एंड इन्वर्टेड, और हाईली डिमिनिश्ड, बिल्कुल छोटी। सो हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, और बन रही है F2 पे। F2 किस डायरेक्शन में होता है? राइट डायरेक्शन में। जो लेफ्ट डायरेक्शन के फोकस है उसको F1 बोला जाता है, राइट डायरेक्शन के फोकस को F2 बोला जाता है। अब हम सेकंड केस करते हैं। अब तक तो हमारा जो इमेज थी वो यहीं पे दिखा, हमारा ऑब्जेक्ट था वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था कहीं पे। अब इस ऑब्जेक्ट को उठा के हम जो ये 2F1 है इससे थोड़ा सा पहले ले आएंगे, तो हमारा हो जाएगा सेकंड केस बी। तो हम फिर से अपना लेंस सिस्टम पेस्ट करते हैं। ये हमारा लेंस सिस्टम हो गया। हम अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं।
ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये 2f से थोड़े से डिस्टेंस पे है, 2f से ज़्यादा डिस्टेंस पे। तो अब क्या होगा, इससे भी लाइट रेज आएंगी, हम फिर से इससे जो लाइट रेज जा रही होंगी हम इनको रेड कलर से शो करेंगे। सो ये हो जाएंगी हमारी इनकमिंग लाइट रेज। एक ये पैरेलल रे हो गई, एक ऐसी रे जो लेंस के पोल से गुजरती है, क्रॉस करती है, कुछ यहां से ऐसे, और एक ऐसी रे जो फोकस से क्रॉस करेगी। तो हमने यहाँ पे 3 रेज प्लॉट कर ली। ये रे हमने एक्स्ट्रा डिस्टेंस तक प्लॉट कर दी, इसको ऐसे प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम जो एक्स्ट्रा हमने प्लॉट किया इसको हम रब कर देंगे। ये ऐसे नहीं। हमारे पास ये 3 रेज हो गई। अब हमें पता है कि जो रे पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, जब भी वो लेंस से क्रॉस करेगी तो वो फोकस पे जाएगी, तो वो जाएगी F2 से। तो हम पहली रे लेते हैं, इसको कहां से क्रॉस करते हैं, F2 से क्रॉस करते हैं। ये लाइट रिफ्रैक्ट होके ऐसे F2 से क्रॉस हो गई। अब बात आती है सेकंड रे की। अब जो सेकंड रे है वो कहां से गुजर रही है, लेंस के पोल से गुजर रही है, और या इसको ऑप्टिकल सेंटर भी बोला जाता है। और यहां से इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी लाइट इससे गुजरेगी वो बेंड नहीं होती। मीन्स इन रियलिटी अगर आप, हमने आपको बताया था कि हम हमेशा यहाँ पे थिन लेंसेज लेके चलेंगे, तो वो सिर्फ थिन लेंसेज के लिए ट्रू है। अगर आप कोई थिक लेंस लोगे तो उसके लिए ट्रू नहीं होगा, उसके लिए वो बेंड होती है अपने पाथ से थोड़ा सा, मीन्स शिफ्ट होती है, बेंड नहीं होती। तो हम यहाँ पे यही एज्यूम करके चलते हैं कि वो लाइट अपने पाथ से बेंड नहीं होती और जैसे आई है वैसे ही क्रॉस करके निकल जाती है। यहाँ से लाइट एज इट इज, ये लाइट एज इट इज जैसे आई थी एज इट इज स्ट्रेट निकल गई। ओके। और अब हम आते हैं थर्ड लाइट पे। जो हमारी थर्ड लाइट है वो फोकस से आ रही है। तो इस प्रॉपर्टी का भी आपको पता है कि अगर कोई लाइट पैरेलल है तो वो फोकस पे जाती है, और अगर कोई लाइट फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल हो जाती है। मीन्स ये लेंस की एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि जो पैरेलल लाइट है, अगर इनकमिंग लाइट, जो इनकमिंग लाइट है अगर वो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो किसको क्रॉस करेगी, फोकस को। और अगर इनकमिंग लाइट फोकस से पास होती है, जैसे ये फोकस से पास हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। सो इस लाइट के साथ भी ऐसा होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये लाइट, लेट मी चूज द सेम कलर, ये लाइट कुछ ऐसे हो जाएगी। तो अब ये तीनों रेज जहां पे मीट हो रही हैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये इमेज बनाएंगे। ये यहाँ पे मीट हो रही है तीनों रेस, तो यहाँ पे इमेज बनेगी। और दिस इज आवर ये हमारी इमेज बनेगी, समथिंग लाइक दिस।
अब देखिए जो ऑब्जेक्ट था वो 2f से लेफ्ट साइड में था, मीन्स 2f से दूर था। इमेज बन रही है f और 2f के दोनों के बीच में, 2f1 से साइड में था तो इमेज बन रही है f2 और 2f2 के बीच में, और ऑब्जेक्ट साइज में थोड़ा बड़ा था, इमेज साइज में थोड़ी सी छोटी है, एंड यहाँ पे रियल में लाइट रेज क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इन रियलिटी जो इमेज बन रही है दैट इज रियल इन्वर्टेड एंड साइज में थोड़ी सी छोटी। सो रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। तो इमेज बन रही है f2 और 2f2 के बीच में, रियल और इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। अब आते हैं हम थर्ड केस पे। फिर से अपने सिस्टम को प्लॉट कर लेते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट है वो 2f के ऊपर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। सो हम ऑब्जेक्ट प्लॉट करते हैं सबसे पहले। तो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। अब जैसे लास्ट केस में हमने 3 रेज निकाली थी, बिकॉज उन्हीं 3 रेज का हमें कंफर्म है कि वो कहाँ से जाएंगे, तो हम यहाँ से भी 3 रेज निकालते हैं। पहली रे जो पैरेलल होगी, दूसरी रे जो ऑप्टिकल एक्सिस से पास करेगी, और थर्ड रे जो फोकस से पास करेगी। ऐसे ही 3 रेज हम एज इट इज निकालते हैं। तो जो आउटगो इनकमिंग रेज हैं लेंस की तरफ, उनको हम रेड कलर से शो करते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट रे। सेकंड रे हम निकालते हैं ऑप्टिकल एक्सिस से, यहाँ से यहाँ तक ही लेके आते हैं। आगे हम जो रिफ्रैक्टेड रे होगी उसको प्लॉट करेंगे। और थर्ड रे हम निकालते हैं जो हमारा फोकस पॉइंट है, ये लगभग यहाँ पे आ जाएगी। ओके। सो अब ये तीनों रे रिफ्रैक्ट होंगी, तो रिफ्रैक्ट के लिए हम डिफरेंट कलर चूज करते हैं। हम सपोज तो ये लाइट, जो पहली लाइट है हमारी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। पैरेलल लाइट हमेशा फोकस से क्रॉस होती है रिफ्रैक्शन के बाद, तो ये लाइट ऐसे फोकस से क्रॉस हो जाएगी। सेकंड लाइट ऑप्टिकल एक्सिस से पास हो रही है, तो हमने ये बताया था आपको, लास्ट फिगर में भी बताया था कि ये लाइट एज इट इज सीधी चली जाती है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा लेंस है जो बहुत थिन है, बहुत पतला है, तो हम इस लाइट को एज इट इज सीधा क्रॉस करवा देते हैं। सो ये लाइट एज इट इज ऐसे चली जाती है। और जो थर्ड लाइट है हमारी, ये क्या हो जाती है, ये पैरेलल हो जाती है किसके, क्योंकि ये फोकस से पास हो रही है, और फोकस से पास होती हुई लाइट पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। सो ये लाइट ऐसे चली जाएगी। और जहां पे लाइट्स मीट करेंगी, ये लाइट इस पॉइंट पे मीट करती है, तो यहाँ पे बनेगी इमेज। ये होगी हमारी इमेज। और अगर आप यहाँ से जस्ट फिगर से भी आइडिया लगाओगे कि ये साइज और ये साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है, और ये तो अभी हम हैंड से ड्रॉ कर रहे हैं, जब आप एक्चुअली प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लेके ड्रॉ करोगे तो आप एग्जैक्टली यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के साइज में इक्वल आते हैं। सो साइज दोनों का इक्वल हो गया। ऑब्जेक्ट 2f1 पे था, इमेज बन रही है 2f2 पे, साइज इक्वल है, और जो लाइट रेज है वो रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, मीन्स रियल है इमेज और इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है। तो हम थर्ड केस ऊपर देखते हैं, तो आपको यही दिखाई देगा। 2f1 पे था तो 2f2 पे बन रहा है, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। सो अब तक हम 3 केसेस कवर कर चुके हैं। अब हम फोर्थ केस कवर करते हैं। फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट को और आगे ले आएंगे। पहले हम इनफाइनाइट पे थे, फिर 2f के पास आए,
फिर 2f पे आए, अभी f और 2f के बीच में कहीं पे आएंगे। तो हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं अपने सबसे पहले। सपोज दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। अब की बार हम ऑब्जेक्ट थोड़ा छोटा बनाएंगे, उसका रीजन ये है बिकॉज ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ से लाइट फिर फोकस लेंस को क्रॉस कर जाएगी, इसलिए हम स्मॉल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। बट जो थ्योरी है वो एज इट इज रहेगी। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब इससे हम फिर से वही 3 लाइट रेज निकालेंगे। पहली लाइट रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारी पहली लाइट रे होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। सेकंड लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, और थर्ड लाइट रे फोकस से पास हो रही है और जो ऐसे लेंस के एंड पॉइंट तक जाती है लगभग अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज हम इनको हैंड ड्रॉ कर रहे हैं। अभी क्या होगा, जो पैरेलल लाइट रे है वो फोकस से पास होती है, थर्ड लाइट रे सेकंड लाइट रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो एज इट इज जाती है हमेशा, और जो फोर्थ लाइट रे है हमारी वो एज इट इज मीन्स ये फोकस से पास होके आ रही है तो ये पैरेलल हो जाएगी। सो अब हम जो हमारी रेज हैं उनको प्लॉट करते हैं, रिफ्रैक्टेड रेज को प्लॉट करते हैं। तो पहली रे फोकस से पास होगी, ये हमारी पहली रे होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, जब रिफ्रैक्ट होगी तो फोकस से पास होगी। जो सेकंड रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो एज इट इज निकल जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज चली गई। और जो थर्ड रे है वो कहाँ से है, फोकस से आई है, मीन्स अब वो क्या हो जाएगी, अगर रे फोकस से आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो हम लाइट रे को, ये लाइट रे हमारी, यहाँ पे हमारा लेंस थोड़ा छोटा है तो इसलिए हम उसके बिल्कुल एंड पॉइंट से लाइट को निकाल रहे हैं। तो जहाँ पे ये तीनों लाइट मीट करेंगी वहाँ पे इमेज बनेगी। सो इमेज बनेगी यहाँ पे, वो हम इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। ये इमेज होगी और ये इमेज का हमने इमेज प्रॉपरली ड्रॉ कर दी। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो देख के, जस्ट बाय योर ऑब्जर्वेशन, दैट ऑब्जेक्ट छोटा है साइज में और जो इमेज है वो साइज में बड़ी बन रही है। ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में रखा था, जो इमेज बनी है वो 2f2 से साइड में बनी है। पहले हमने ऑब्जेक्ट को जब 2f1 से साइड में रखा था तो इमेज f2 और 2f2 के बीच में बनी थी। तो ये जस्ट एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेके आते जा रहे हो, इमेज लेंस से दूर होती जा रही है। पहले इमेज यहाँ पे बनी थी, फिर यहाँ पे बनी, फिर यहाँ पे बनी और अब यहाँ पे पहुंच गई है। जैसे ऑब्जेक्ट के पास आप ऑब्जेक्ट लेंस के पास आप ऑब्जेक्ट को लेते आओगे वैसे ही इमेज उससे दूर होती जाएगी। एंड जो लाइट रेज हैं वो रियल में इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल इमेज है, रियल है, इन्वर्टेड है और साइज बड़ा है तो एनलार्ज्ड है साइज में। सो अगर हम ऊपर जाके देखें तो जो हमारा फोर्थ केस था f1 और 2f1 के बीच में, तो बियॉन्ड 2f2 बन रही है, साइज में एनलार्ज है, रियल और इन्वर्टेड है। अब हम हमारा केस नंबर 5 देखते हैं, ई। फिर से हम अपना सिस्टम ड्रॉ करते हैं। अब ऑब्जेक्ट है फोकस के ऊपर, तो फोकस पे हम ऑब्जेक्ट को प्लॉट कर लेते हैं। सो सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है।
अब इससे हम 3 लाइट रेज निकालते हैं। पहली पैरेलल, दूसरी ऑप्टिकल एक्सिस से, और जो थर्ड है वो यहां से ऐसे जाएगी। सो लेट अस ड्रॉ। जो इनकमिंग लाइट है हम उसको फिर से रेड से ड्रॉ करेंगे। ये पहली रे हो गई, ये सेकंड रे हो गई, और ये थर्ड रे हो गई। अब जो हमारी पहली रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास करेगी। सेकंड रे एज इट इज जाएगी, और जो थर्ड रे है, अब की बार थर्ड रे स्ट्रेट नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि स्ट्रेट रे वही होती है जो फोकस से होके आती है, ये फोकस से होके नहीं आ रही, तो ये रिफ्रैक्ट होगी, ये लगभग ऐसे जाएगी। तो हम आपको प्लॉट करके दिखाते हैं कि कैसे जाएगी। सो पहली रिफ्रैक्टेड रे प्लॉट करते हैं। यहां से रे स्टार्ट होगी, फोकस से पास होते हुए ऐसे जाएगी। सेकंड रे एज इट इज जैसे आई है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो स्ट्रेट एज इट इज चली जाएगी। और जो थर्ड रे है वो ऐसे पाथ फॉलो करेगी। अब जो ये तीनों रेज हैं ये क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो जो इमेज है इनके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के या मीट करने के चांस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ही बनेंगे। तो जो इमेज होगी वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनेगी, एंड उसका साइज बहुत बड़ा होगा क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके बन रही है। हाईली एनलार्ज्ड होगी, एंड बिकॉज ये वहां पे जाके हम ये सपोज कर रहे हैं कि मीट कर रहे हैं लाइट रेज, तो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। सो दिस इज आवर फिफ्थ केस। सो जो फोकस पे थी इनफाइनाइट पे बनेगी, इनफाइनाइटली लार्ज और हाईली लार्ज मीन्स बहुत बड़ी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अब हमारा बचता है लास्ट केस, F1 एंड O के बीच में। तो हम लास्ट केस अपना प्लॉट करते हैं। सो अब ऑब्जेक्ट आ जाता है यहां पे। ऑब्जेक्ट प्लॉट करते हैं। ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इससे भी हम सेम लाइट रेज निकालते हैं। पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई। सेम रेड कलर यूज करते हैं। ये पहली रे, ये सेकंड रे, और ऐसे एक थर्ड रे निकाल लेते हैं। तो सबके लिए सेम फिनोमिना है। ये लाइट रे फोकस से पास होगी, ये लाइट रे एज इट इज चली जाएगी, और ये लाइट रे भी रिफ्रैक्ट होके क्रॉस करेगी। तो हम प्लॉट करके दिखाते हैं कि कैसे रिफ्रैक्शन होगा। पहली लाइट रे फोकस से पास हो रही होगी ऐसे, सेकंड लाइट रे एज इट इज स्ट्रेट चली जाएगी, और थर्ड लाइट रे कुछ ऐसे जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये दोनों केस आपको एक जैसे लग रहे होंगे कि ये भी इनफाइनाइट पे मीट कर जाएंगे, पर यहाँ पे ऐसा के नहीं होगा, बिकॉज जो ये लाइट रेज थी, ये थी, ये लाइट रेज थी पैरेलल, तो इनके मीट करने की इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पॉसिबिलिटी मानी जाती है। बट जो ये लाइट रेज हैं ये डाइवर्जिंग लाइट रेज है।
डाइवर्जिंग का मीनिंग कि इनके बीच का डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये एक दूसरे से दूर जा रही है। और अगर ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं मीन्स ये कभी भी मीट नहीं करने वाली, और अगर ये कभी भी मीट नहीं करने वाली तो क्या होगा, इनसे रियल इमेज तो कभी भी नहीं बनेगी। तो इनसे क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी वो अभी आपको दिखाते हैं। तो जो वर्चुअल इमेज बनेगी उस केस में क्या होगा कि यहाँ से तो कोई लाइट मीट नहीं हो रही, बट हमें क्या लगेगा कि ये जो लाइट है, ये जो डाइवर्जिंग रेज हैं, अगर हम इनको ऐसे यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट कर दे तो यहाँ पे ये कन्वर्ज होने लग जाएंगे। तो हमारा माइंड क्या करेगा, इनको यहाँ पे वर्चुअली कन्वर्ज करवा देगा। सो जो यहाँ पे लाइट रेज, अगर हम इनको यहाँ से रिवर्स प्लॉट करें, ये पहली हो गई, ये सेकंड, इनको थोड़ा सा बेटर वे में प्लॉट करते हैं। थोड़ी लेंथ पे ये हमने फर्स्ट को प्लॉट कर दिया, ये सेकंड प्लॉट हो गई, और ये थर्ड प्लॉट हो गई। अब ये और भी फर्दर दूर जाएंगी। तो अप्रोक्सीमेटली कहीं यहाँ पे जाके वो एक दूसरे से मिल जाएंगी, और ये जहाँ पे जाके मिलेंगी वहाँ पे बनती है वर्चुअल इमेज। तो हम प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, और जो ये इमेज बनेगी ऐसे यहाँ से, ये बनती है वर्चुअल इमेज। और ये कहाँ पे बनती है, लेफ्ट साइड में बनती है, और कहीं भी बन सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि इसका और लेंस का डिस्टेंस कितना है, इमेज ऑब्जेक्ट का और लेंस का डिस्टेंस कितना है, उसके बेसिस पे इसकी लोकेशन कहीं भी हो सकती है। बट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि एक तो ये वर्चुअल है क्योंकि रियल में लाइट रेज नहीं मिल रही, दूसरा इसका साइज बड़ा होगा, और तीसरा इसकी ओरिएंटेशन सेम होगी। मीन्स जिस ओरिएंटेशन का ऑब्जेक्ट था उसी ओरिएंटेशन में ये इमेज बनेगी। तो इसको वर्चुअल एंड एरेक्ट बोला जाता है। तो अगर आप ऊपर जाओगे जहाँ पे हमने केसेस डाले हुए हैं सभी के सभी, सो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, पर यहाँ पे देखिए मेंशन नहीं है, जैसे यहाँ पे मेंशन था f2 पे, f2 और 2f2 पे, बियॉन्ड 2f2, यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया जा सकता बिकॉज वो डिस्टेंस पे निर्भर करता है कि कितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट के बीच में, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है और लेंस के बीच में। इमेज का साइज बड़ा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, मीन्स वर्चुअली इमेज बनेगी, रियल नहीं बनेगी क्योंकि रियलिटी में वहाँ पे लाइट रेज मीट नहीं करती। और दूसरा उसका साइज जो ओरिएंटेशन सेम होगी, इरेक्ट होगी। सो ये था इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अभी हमें इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव लेंस भी करना है, उसके केसेस इसके कंपैरिजन में कम है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अभी इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस पे बढ़ते हैं। सो आपको आपकी स्क्रीन पे जो कॉनकेव लेंस है इसका बेसिक्स जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम हम यूज करेंगे वो दिखाई दे रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जैसे
कॉन्वेक्स लेंस के लिए था कि दो फोकस थे और दो टू एफ टू कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर्स थे, ऐसे इसके लिए भी दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, और ये इसका जो सेंटर में है इसको पोल या ऑप्टिकल सेंटर आप बोल सकते हैं। तो हम इसके लिए केसेस को स्टडी करेंगे, और इसके लिए टू ही केसेस होते हैं, फर्स्ट इन्फानाइट केस और सेकंड एनीवेयर केस, कि इन्फानाइट को छोड़ के आप बाकी कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो तो क्या होगा। तो हम दोनों केसेस को स्टडी करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम को कॉपी कर लेते हैं सो दैट हम केसेस को स्टडी कर सकें। सो दीज आर आवर टू केसेस। हम इन दोनों केसेस को आपको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट केस स्टार्ट करते हैं। सो केस नंबर ए, कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, लाइट इनफाइनाइट से आए। सो हम इनफाइनाइट से लाइट ड्रॉ करते हैं, और हमने पहले ही बताया था आपको कि जब भी इनफाइनाइट से लाइट आती है तो वो ऑलवेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के। सो सपोज ये हमारी फर्स्ट लाइट रे है, दिस इज आवर सेकंड लाइट रे, ये थर्ड लाइट रे है, और ये फोर्थ लाइट रे। अब जो पैरेलल लाइट रेज हैं वो ऑलवेज कहाँ पे जाती हैं, फोकस पे जाती हैं। जैसे जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर था उसके केस में वो कन्वर्ज होके इस फोकस की तरफ जा रही थी। बट इसके केस में क्या होता है कि जो ये लाइट रे हैं, ये जब इस कॉनकेव लेंस सिस्टम के ऊपर पैरेलल लाइट रेज गिरती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, वो डाइवर्ज होती हैं, वो ऐसे वापस चली जाती है, मीन्स राइट साइड में जाती हैं, बट किसी एक एंगल पे डाइवर्ज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, अगर आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करके यहाँ पे अगर हम छोटा सा एक नॉर्मल ड्रॉ करें आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, कि नॉर्मल ड्रॉ करने का प्रोसीजर क्या था कि आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से या 2f से लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो आप यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, सो वो लाइन अप्रोक्सीमेटली ऐसे क्रॉस करेगी, ठीक है, जो नॉर्मल होगा यहाँ से। और यहाँ पे लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंस मीडियम की तरफ जा रही है, तो जो लाइट है वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, मीन्स वो जो ये रेड पाथ है वो अपना पाथ को थोड़ा सा चेंज करेगा। हम इसको ये स्काई कलर से प्रेजेंट करते हैं, तो ये लाइट ऐसे ना जाके कुछ ऐसे जाएगी, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई थोड़ा सा। ऐसे ही जो ये लाइट है, ये लाइट भी थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड होती है और ऐसे चली जाती है। ये अपोजिट साइड में होती है और ये ऐसे चली जाती है। और सिमिलरली जो ये वाली लाइट है वो ऐसे चली जाती है। अब हमने जो लेंस है उसको थोड़ा साइज में बड़ा दिखाया, और हमने आपको बताया था कि हम हमेशा थिन लेंसेज लेंगे, मीन्स बिल्कुल पतले लेंस लेंगे, बिकॉज वहाँ पे डबल रिफ्रैक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन इस पॉइंट से होता है, एक पॉइंट इससे होता है। हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि एक ही रिफ्रैक्शन हो रहा है और वो सेंटर से हो रहा है। तो ये जो लाइट है वो ऐसे निकल जाती है, और ये क्या है, ये डाइवर्जिंग लाइट है, मीन्स ये एक दूसरे से दूर जा रही है। तो दूर जा रही है तो कभी मीट नहीं करने वाली, तो इस साइड तो कभी इमेज नहीं बनेगी। तो फिर हमें क्या लगता है कि ये लाइट किसी एक पॉइंट से आई है, अगर हम उस पॉइंट पे इस लाइट को ले जाएं, हम उसको ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर इस लाइट को हम इस साइड एक्सटेंड करें ऐसे, तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे फोकस पॉइंट से आ रही है लाइट। और ये फोकस से आ रही है, तो जो इन्फानाइट से जो लाइट आई वो हमें लगेगा कि इसके फोकस पे मीट हो गई, बट वो एक्चुअली मीट नहीं हुई है, वो ओनली वर्चुअली मीट हुई है, बिकॉज ये सब हमारा माइंड करवाता है। उसको एक
जब हमारा माइंड को रियल इमेज नहीं दिखाई देती तो उस स्पेस को फिल करने के लिए वो वर्चुअल इमेज क्रिएट करवाता है। तो हमें यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज दिखाई देगी, उसका साइज बिल्कुल स्मॉल होगा क्योंकि वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, पॉइंट साइज की होगी। और वर्चुअल इमेज है तो क्या होगा, ओरिएंटेशन सेम होगा जो ऑब्जेक्ट का है, मीन्स एरेक्ट, अगर वो स्ट्रेट है तो वो स्ट्रेट होगी, अगर इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड होगी। सो दिस इज केस नंबर 1। अब आते हैं केस नंबर 2 पे, कि अब हम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। तो अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2F के ऊपर, वैसे हम कहीं भी रख सकते हैं। सो ये हमारा लेंस सिस्टम हो गया। अब हमें अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है तो हम उसको 2F और F1 के बीच में रख देते हैं फॉर कन्वीनियंस। ये हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, और अब हम इससे फिर से वही लाइट रेज निकालेंगे, एक फोकस से, एक ऑप्टिकल सेंटर से, और एक पैरेलल। तो हम 3 लाइट रेज प्लॉट करते हैं। ये पहली लाइट रे, ये सेकंड लाइट रे, और ये थर्ड लाइट रे। अब जैसा हमने आपको बताया ऑलरेडी कि ये वाली लाइट रे इस लेंस सिस्टम में जब भी पास करती है तो वो ऐसे डाइवर्ज होती है। सो हम जो डाइवर्ज लाइट है, मींस रिफ्रैक्टेड लाइट है, उसको ऐसे प्लॉट करते हैं। ये रिफ्रैक्टेड लाइट हो गई इसके केस में, जो पैरेलल थी एक्सिस के, जैसे हमने ऊपर किया था और आपको दिखाया भी था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस लाइट के साथ यहाँ पे सेम होगा। अब आते हैं हम, जो हमारी सेकंड लाइट है, सेकंड लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो जो कॉन्वेक्स लेंस था उसके केस में स्ट्रेट एज इट इज चली जाती थी, और इसके केस में भी ऐसा होगा कि स्ट्रेट एज इट इज निकल जाएगी। सो इट विल गो स्ट्रेट एज इट इज। अब आते हैं थर्ड लाइट पे। तो अगर थर्ड लाइट की आपको कैलकुलेशन करनी है तो आपको इसके लिए फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। तो हम इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट में नॉर्मल कुछ यहां से आएगा एंड समथिंग लाइक दिस, ऐसे होगा। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम उसको क्लीन कर देते हैं, ये नॉर्मल हो जाएगा। अब जो ये लाइट है रेयर से डेंस मीडियम में जा रही है, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, मींस ये थोड़ा सा ऐसे जाएगी। सो इसका पाथ कुछ ऐसे हो जाएगा। ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं, अप्रोक्सीमेटली ऐसे हो जाएगा। तो अगर आप इन तीनों रेज को देखोगे, ये फिर से क्या है, डाइवर्जिंग रेज है, ये फिर से मीट नहीं करने वाली। तो क्या होगा, आपकी आईज को फिर से लगेगा गैप फिलिंग के लिए कि कोई वर्चुअल इमेज बन रही है। और वर्चुअल इमेज कैसे बनती है कि आप जो रिफ्रैक्टेड लाइट है उसको बैक ट्रेस करते हो। ये लाइट रिफ्रैक्टेड है, इसको आप बैक ट्रेस करोगे, ये लाइट रिफ्रैक्टेड, इसको आप बैक ट्रेस करोगे। तो हम ग्रीन कलर से बैक ट्रेस करते हैं। so, ये लाइट ऐसे फोकस से पास होगी क्योंकि ये पैरेलल थी रिफ्रैक्ट होके। ये लाइट भी बैक ट्रेस होगी, यहाँ पे आएगी, और ये लाइट बैक ट्रेस होके कहीं पे जाएगी ऐसे। तो इसका तो इमेज फॉर्मेशन में कोई पार्ट ही नहीं होगा। बट अगर आप देखोगे कि यहाँ पे ये दो लाइट एक दूसरे को कट कर रही हैं, और जब ये लाइट एक दूसरे को कट करेंगी तो यहाँ पे इमेज बनेगी।
इस टाइप की इमेज बनेगी। और ये इमेज है जो वर्चुअल रेस की वजह से बनी है, तो इमेज वर्चुअल होगी। वर्चुअल है तो नॉर्मली जो भी इमेज वर्चुअल होती है उसकी ओरिएंटेशन ऑब्जेक्ट के बराबर सेम ही होती है। मींस अगर ये स्ट्रेट है तो ये भी स्ट्रेट ही होगी। सो बट साइज स्मॉल है, तो ये डिमिनिश्ड है, साइज में थोड़ी सी छोटी है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। सो इमेज इज वर्चुअल, स्ट्रेट मींस इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड डिमिनिश्ड साइज में छोटी। तो अगर हम ऊपर देखें जाके, तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। और ये बन रही है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है। तो ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है। सो दिस कवर्स आवर सेकंड केस, एंड विद दिस हमारे जो सभी केसेस थे लेंस के लिए, कनकेव के लिए और कन्वेक्स के लिए, वो भी कवर होते हैं। जो इससे आगे वाली वीडियोस होंगी उसके अंदर हम लेंस फॉर्मूला करेंगे डिस्कस, और उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट देयर विल बी वन अनदर टॉपिक, और उसके साथ थियोरेटिकल पार्ट ऑफ ये चैप्टर कवर हो जाएगा। सो एज यूजुअल, अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, मीन्स आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई हो, आपको कंसेप्ट समझने में मदद मिली हो, सो आई विल अर्ज यू टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज जितना आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, दैट कि यस देयर आर पीपल जिनको ऐसी वीडियोस की ज़रूरत है, एंड हमें ऐसे वीडियोस और फर्दर और ज़्यादा मेहनत के साथ बनाने चाहिए। सो आई विल अर्ज यू टू like this video, share this video and subscribe to my channel. हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, and till then keep on watching, keep on studying. Thanks.